you that time in the beginning only. So same way, we try to tell devotees, we try to tell people that please listen to what Shastra is speaking, what gurus are speaking, our acharya is speaking. Don't trust your own mind. But they don't listen. And when they go to material world and they get solid kicks of Maya, then they think, "Arey, ab kya karu, main phas gaya abhi. What can I do now?" So if you don't listen to scriptures and acharyas and your superiors, so you will be in such a troublesome situation, then there is no turning back. So this is the problem. Same thing Krishna told you disaster that I told you so many times. Vidura tried to persuade you, then our Bhishma Dev tried to persuade you, then you insulted Vidura. You never listen to Bhishma Dev. Even I came personally, Krishna told, I personally came as a messenger, peace messenger, but you disrespected me. You wanted to capture me. And then Krishna tells that he tells a very emphatically there, he tells that the day your sons, all the 100 sons, they disrespected Draupadi in that Asat Sabha, that day they were dead. That day they were dead. Now, and it has to come. Because in a dynasty where elders are there, in front of that elders, if a respectful woman is disrespected in such a nasty way, getting disrobed, this is intolerable. So it has to come, and you are a part of that sin because you kept quiet at that time. As an elderly, you should have spoken at that time. So because you didn't spoke, now this day has come to you that you are crying and crying and crying. Like this, Krishna tells you so many things that you are, you yourself are the cause of all this destruction. So then when Gandhari curses also, then Krishna takes them to Bhishma Dev. So he is still lying there in the bed of arrows. So then when this Gandhari and Dhritarashtra, of course they could feel that the arrows are there. So then Gandhari tells that, "Oh Pitama, we are such unworthy daughter and son of yours that it is because of us you have to undergo this situation." Then Vishnu tells that, no, it's not because of you. It's not because of you. It's my own prarabdha. I might have done something in my past life. That's Vishnu humility. And I've done. Then Vishnu tells very nice instructive lessons. He tells that then Rita starts crying and what has happened to Kuru dynasty. Everybody is dead now. Everywhere there is only sounds of crying and all wailing, and women are widowed, and what has happened. Then Vishnu tells that you are now getting so much remorse, but understand Dhritarashtra that this is a part of life. Many lives we all have taken. There it tells the same knowledge what Krishna tells to Arjuna. Then many lives bahuni me veditani, Arjuna tells. But you are not lamenting for those relatives who passed away in your last life. Now that you are bodily attached to these people, you are lamenting. In future also, you will not lament for them because you will forget them. So that's why in the course of our journey, so many people will come across us. Parents, relatives and all in this thing. But a Jivatma, his only prime duty is to serve Krishna. So if a Jivatma forgets this point that I am eternally connected to Krishna, and then he starts identifying himself with this material world, with this material relationship, he is sure to lament. So these things will always keep coming. This lamentation, and then from the past lamentation, and for future worries. These things will come. Moha. So Sok Moha Bhaya Paha. Sok Moha Bhaya. Sok for past, Moha for present, and Bhaya for future. So these three things will always capture a conditioned soul because of his identifying with the body. So that's why spiritualists, what they do, they always keep at the back of their mind this death. It's very important. So we should somehow that adjust this concept in our mind, in our brain, that the one day, last day for me also is going to come.
And before that time comes, let me put my best endeavor to practice Krishna consciousness. If I don't do that, then at that time, I will have no other chance. No other chance. You cannot do anything at that time. You cannot do. And none of us know that under what circumstance we leave our body. We don't know that maybe we may be lying in bed in our home and right now you have parents who are going to take care. But it may so happen that tomorrow your son and your daughter-in-law will not even ask you water also. It may happen or not. It is happening or not today. It may happen. अभी आपके माँ बाप है, वो तो चाहे जैसे भी रो के आपका ध्यान रखेंगे, वो आपको खाना वाना देंगे, सब कुछ देंगे, भले आप कुछ भी मत करो, ढल्ले पड़े रहो घर पे, तभी वो आपको देंगे, बिकॉज वो आपसे बॉडली अटैच्ड है. बट कल का क्या है, कल तो वो रहेंगे नहीं. एंड इन फ्यूचर सपोज नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू डाई, योर सन, चिल्ड्रन, योर डॉटर इन लॉ एंड ऑल, दे विल लाफ एट यू एंड दे विल प्रे दैट अरे उठा लो उसको. उस समय आप कैसे बर्दाश्त कर पाओगे, आप सोचो. अभी सोचो आप इस चीज को, एंड तब तक हम और कितना अटैचमेंट डेवलप कर चुके होंगे, सोचो आप. तो उस समय शरीर छोड़ना भी मुश्किल है और जो है जीना भी मुश्किल है. तो ना जी पाओगे ना मर पाओगे. तो ये सब सोचना चाहिए एज अ स्पिरिचुअलिस्ट. ये सब सोचने से क्या होगा, थोड़ा वैराग्य आता है. दैट्स व्हाई वी डिस्कस दिस थिंग. तो इफ दिस हैपेंस, एंड कोई बोल सकता है कि ऐसा नहीं, मेरे साथ नहीं होगा, क्या गारंटी है? क्या गारंटी आपको ओल्ड एज होम में नहीं फिर देंगे ठाके वो लोग? क्या गारंटी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को पूरा वो लोग धोखे से जब्त कर लेंगे? That's why in Bhagavatam, this one verse comes where it tells that our own relatives, they become plunderers of our wealth. It is written in the 5th canto that they are the greatest plunderers of wealth of a person. But then Prabhupada tells very graphically that a person, if a thief takes 10 rupees from him, then he goes to beat him and he goes to do पुलिस केस. बट उसकी वाइफ जो है वो पूरा पैसा कमा के लाता है और उसको एक एम्ब्रेस करके उसके बटुआ निकाल लेती है पर्स से, पूरा पॉकेट से, कुछ नहीं बोलता वो. तो क्या, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ले लो ले लो ले लो, सब आपका ही ले लो. प्रॉपर बोलते ऐसा कि वाइफ जो है आकर के पूरा पर्स छीन लेती है उसका, पूरा बैंक बैलेंस वाला अकाउंट सब कुछ उसके हाथ में रहता है, बट वो कुछ नहीं बोलता. वो प्लंडर है कि नहीं है, आपकी मेहनत कमाई पूरा खा जा रही है वो, बट कुछ बोलते हैं हम लोग नहीं बोलते. दिस इज इल्यूजन. ये इल्यूजन है. तो दैट्स व्हाई वन शुड बी वेरी मच observant of this thing, observant of this kind of happenings which may happen to all of us. So I'm not telling that don't marry, but become Krishna conscious, then marry. If you're not Krishna conscious, we are unnecessarily wasting this life, and then there is no rescue. So that's why this chapter, particular chapter 8 chapter, will discuss elaborately, about death, how to face death. And it's not going to be easy. I'm telling again and again, it's not going to be easy. Even big transcendentalists, it's not easy to cross over death. Don't take it so cheaply. अब यहाँ 2 दिन बुखार क्या पड़ गया, हालत खराब हो जाती है. We forget Krishna. It's so difficult to chant 16 rounds or whatever rounds we are chanting. When we are sick and taking antibiotics medicine, how will you chant at that time? Just imagine. How will you chant when you are on the verge of death? Just imagine. हम लोग वही सोचना चाहिए कि मैं तो वही सोच के मेरा दिमाग घूमता था कि क्या होगा उस समय मेरा. इसलिए तो वो कुलशेखर महाराज प्रे करते ना, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैतुम विषमे मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तो कंठावरोध कुट स्मरामि. Oh Lord, how will I remember that time when I die? Right now, my body is very fit and healthy. My mind is in a good condition. Let the swan of my mind, get entangled
in the stem of the lotus feet of a lotus feet, like lotus flower. अगर जैसे एक हंस क्या करता है ना, अपना गले को जाके पूरा बांध लेता है ना उससे, जो अपने स्टेम से. Ravi, you can go outside. Lot of disturbance, you are making noise. Listen, आप बाहर जाके ज्वाइन ऑनलाइन कर लो. तो वो जो हंस होता है वो अपने गले को वो स्टेम से पूरा लपेट लेता है. सो सेम में कुलशेखर महाराज प्रेज दैट मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कपवात. तो he tells them, let my mind, the swan of my mind, get entangled at the stem of your lotus feet. आपका जो लोटस फीट है उससे मेरा माइंड का जो ये स्वैन है वो फंस जाए, वो बंध जाए, ऐसा वो प्रार्थना करते हैं. So this is what a devotee wants. So if we don't practice from now itself, it's not going to be easy. It's not going to be easy. So you decide now how you're going to remember Krishna. So many thoughts we are having throughout the day and night, and and 24 hours in a day we have so many thoughts. If you just close eyes, woman का चेहरा हमारे सामने आता है. वुमेन, मनी, पोजीशन, पोस्ट, जॉब. यार कैसे कृष्ण का स्मरण होगा, सोचो आप. It's so difficult, but we are least bothered about it. We are not crying about it. That's why today I heard Bhakti Aswasya Maharaj was telling that actual bhakti starts when you are crying, remembering Krishna. Oh Krishna, I'm not able to remember you. I'm not able to chant your holy name nicely. I'm not able to do proper sadhana. When you're crying, literally crying and remembering like this, then actually you are coming on the verge of starting bhakti. But if you are not crying and remembering, we are thinking, हाँ ठीक है ना, बस दिन जा रहा है, मेरे को बढ़िया क्या है, मेरे को तो केक खाने को मिल गया, मेरे को आज पिज्जा मिल गया, मंदिर गया था, मेरे को आज चाउमीन मिल गया, पाव भाजी मिल गया, मेरे को और क्या चाहिए, मत दो चलो मेरा गुणगान कर दिए. ये सब बकवास है. ये सब ठीक है, हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है भक्ति में रहने के लिए, बट एक्चुअली दिस इज नॉट नथिंग टू डू विद भक्ति. So bhakti is that intense. I read that there should be a long fire of longingness, or that greed should always burn in our heart. That fire, that this one day is passing, this life is passing without remembering Krishna. I'm just passing my day and night without remembering Krishna, without advancing in spiritual life. What a fool am I? When you start thinking like this, actually you are starting bhakti. Actually, so I'm telling you very openly and frankly this thing. What Shastra say, don't see what the world says. At the end of our life, we are not here to please the world. दुनिया क्या बोलेगी हमारे बारे में? भाड़ में जा, दुनिया क्या ले देना. दुनिया, आप जब मर रहे हो दुनिया का आपको बचाने आएगी क्या आपको बचा पाएगी वो? But Krishna can save you. That is the intelligent person. We should not care about this world. Of course, we care in the sense that we are in this world. But दुनिया क्या बोलेगी मेरे बारे में? अरे वो लोग क्या बोलेंगे, इसको लाख रुपए का जॉब नहीं कर रहा, अरे ये नहीं कर रहा, अरे क्या लेना देना उनसे हमको? Actually, what matters is what Krishna will think about me. That he gave me such a chance to come to ISKCON, to come to Srila Prabhupada, to take association of devotees. He gave me association, and I'm such a fool that I am not utilizing it properly. I'm wasting my time just unnecessarily. फालतू की बातों में बर्बाद किए जा रहे हैं हम अपना समय. ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए. अगर आप रियली सीरियस हैं आप अपने भक्ति को लेकर के, तो इस पे गंभीरता से सोचिए. कैसे दिन हो रहा है, रात हो रहा है, पार अभी जन्माष्टमी और पार हो गई, आ रही है, पार हो जा रही है, आ रही पार हो जा रही है. हम कहाँ वहीं के वहीं पड़े हुए. व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग नथिंग. तो इसीलिए क्या है, अ थॉटफुल पर्सन will evaluate his each day. Where am I moving forward? Each day by day करते आपके अंदर longness आ जाएगी, and that intense greed will come, and then with that greed detachment will come. जब जितना आपका हैंकरिंग बढ़ेगा कृष्ण को प्राप्त करने का, उतना मटेरियल डिजायर्स और मटेरियल हैंकरिंग कम होगा. और कोई तरीका नहीं है.
नहीं तो अटैचमेंट ही बढ़ेगा। जितना दिन हम इस दुनिया में बिताएंगे उतने अटैचमेंट हमारे बढ़ने वाले हैं, याद रख लो। क्योंकि हर दिन कोई ना कोई अटैचमेंट हमारा बढ़ते ही जा रहा है। जब हम कोई ना कोई चीज नई नई देख रहे हैं, कुछ ना कुछ हम सुन रहे हैं, तो अटैचमेंट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। So if you are not positively increasing your attachment to Krishna, you will increase your attachment to Maya 100%. 100%. And then that person is Atmaha. It is suicidal. Prabhupada tells that. We are committing suicide because we are unnecessarily starving the soul of its real wealth. And then, we will have to suffer badly. So that time. Now, whenever these classes happen, so I tell that don't take it cheaply. Many of our devotees, I see that they think that this class is not for me. Oh, I am very well situated. But when they fall trap to Maya, then they think, because you are not hearing nicely, if you don't do nice Sravanam, I'm telling you, you will be trapped so badly by Maya, then nobody will come to save you. So don't think like, it is just, kya farak padta hai. Actually, a sincere devotee will hear each words coming, to him as an alarming message. This is for me. What am I doing? What am I doing? I am not serious enough in my Krishna consciousness. Because Maya is going to become more stronger and stronger and stronger as days pass by. If you are not serious enough, don't think that, that somebody is going to pull you up. You have to run behind. This world is so fast that people will just move forward. You have to survive. You have to take shelter. You have to protect your Krishna consciousness. You have to run behind counselor. You have to run behind devotees and take help. Don't think they will always come and they will call you, प्रभु जी कहाँ हो कहाँ हो। 5 बार कॉल करेंगे, उसके बाद बोलेंगे यार इसको इंटरेस्ट नहीं, हटाओ। देन वो दूसरों को पकड़ेंगे, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए लाइफ ऐसी चलती है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट डोंट टेक योर कृष्णा कॉन्सेप्ट वेरी चीपली, एंड दोज आर टेकिंग चीपली, so don't think that it's not doesn't come to our notice. We come to know who is performing what, who is doing what, वो सब पता चल जाता है हम लोग को, जो भी चीजें हैं। So, but my humble request is that all our youth devotees, they should take, if you really want to be with the Yuva Club, practice your Krishna consciousness sincerely, at least chanting very sincerely. I'm telling you, if somebody is not chanting Hare Krishna mantra nicely, he's just simply counting his days. And I'm telling you, you will not survive in bhakti. There is no chance. Because this, I recently read in Chaitamrita, when Kaviraj Goswami writes in the Adi Leela, chapter number 14, 14 या 15 है, उसमें लिख रहे थे हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा. So this verse we are reading. Very astonishingly, after this verse, he writes, Kaviraj Goswami, नास्ति एव केवलम. So he tells that this kevalam what has come because in this age, in this Kali Yuga, no other method will work. No other method will work. No other. If you think that you are too austere, or you are following brahmacharya life, or you are very charismatic, or you have some skills, you are simply fooling yourself. There is no other way. If you want to surpass Maya, you want to protect yourself from the influence of Kali and Maya, there is no other way except chanting Hare Krishna mantra. So if you are not chanting sincerely your rounds and with utmost concentration and this thing, you are inviting Maya to squander your spiritual life. So this is a warning, I'm telling you, because I'm seeing many devotees, they are not chanting, they are taking the chanting as the least attentively. They give least attention to their chanting. मोबाइल में व्हाट्सएप देखते देखते या कुछ ये करते करते या एकदम लास्ट प्रायोरिटी उसको देते हैं, एकदम रात को करेंगे 10 के बाद, कैसे तो घसीट पसीट के माला कर रहे हैं. ट्राई इट आउट, डू इट, ऑल योर टेस्ट विल बी गॉन फ्रॉम भक्ति. आई एम टेलिंग यू, पूरा नीरस हो जाएगा भक्ति, एकदम खोखला हो जाएगा भक्ति, एकदम खोखला. फिर आप भले ही फेस्टिवल में आओगे, आप गाओगे, कीर्तन करोगे, सब करोगे, आपको खोखला लगेगा, खोखला पूरा हॉलो लगेगा, because you have not chanted your rounds nicely.
That's why these two things are, they are the heart of our spiritual life. Chanting Hare Krishna mantra and reading Srila Prabhupada books. If you are not doing these two things, so sorry to say, Prabhus, you are really in a wrong track. And if at all you are designing, thinking that I will make spiritual advancement, you are in an illusion. And after some years, you will find that you will feel, I wasted my time in ISKCON. I wasted my time in Krishna consciousness. These people, they cheated me. They illusioned me. You will tell this from your own mouth, I'm telling you. You will tell this to me after a few years. That Prabhu, you people have cheated me. You know, कुछ नहीं है भक्ति में, सब बकवास है. ये आप बोलोगे. क्यों बोलोगे? क्योंकि आपने बात नहीं मानी. क्योंकि आप जो है इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हो. आप मेडिसिन को ठीक से नहीं ले रहे हो. और आप जो है अननेसेसरी जो है खाली टाइम पास के लिए यहाँ पर टाइम बिता रहे हो. और जो है ना आपके अनर्थक जा रहे हैं, ना आपको भक्ति का टेस्ट आ रहा है. आप खाली ड्रैग किए जा रहे हो अपने आप को. तो ना आप भौतिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाओगे, ना आपको स्पिरिचुअल टेस्ट आ रहा है. तो वही हाल हो जाएगा जो रिवन क्लाउड जो अर्जुना बोलते हैं, ना घर का ना घाट का. और फिर आप ब्लेम करोगे ISKCON को कि भाई इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया. तो बेटर, अगर आपको भक्ति नहीं करना है, नहीं है, डोंट फूल योरसेल्फ. पहली हाथ खड़ा कर दो, भैया नहीं होगा अपने से ये सब चीजें. प्रभु जी आप हमसे उम्मीद मत रखो, हम नहीं है, कोई बात नहीं, तो वो नहीं है. You want to enjoy better life, go and enjoy. और लाख खा के आओ फिर, कोई दिक्कत नहीं. But if you are posing yourself as a devotee and you want yourself to be accepted as a devotee in the community, then Prabhu, I am telling you that please take this chanting of holy name very very seriously. जिन लोगों ने इसको नहीं लिया है सीरियसली, प्रभु उनका लाइफ देख लो जाकर के. कोई नहीं टिक पाया है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं. स्पेशली जो लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं वो तो खास करके. आप ये मत सोचिए मदन मोहन जी आपके यहाँ रक्त टिका के रखेंगे. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. कोई नहीं टिक पाता प्रभु, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो सन्यासी हो, कोई भी हो. क्योंकि युग धर्म है ये हरिनाम. जो गंभीरता से नहीं लेगा वो नहीं टिक पाएगा, वो क्लीन बोल्ड होगा. इसलिए अभी भी समय है, हमारे पास सुधर जाइए. इसके लिए प्रयास कीजिए. 4 माला, 8 माला, 12 माला, 16 माला अच्छे से सुबह एकदम ऑनेस्टली भगवान सामने बैठ करके प्रार्थना के मूड में अच्छे से जप करें. ये चीज को गंभीरता से लीजिए, मॉर्निंग प्रोग्राम को गंभीरता से लीजिए. ये बहुत जरूरी है. नहीं तो माया का एक झोंका आएगा, वो ऐसा उड़ा के लेके जाएगा कि कोई बचा नहीं पाएगा उस समय. समटाइम वी मे थिंक दैट कि ओह मुझे क्या फर्क पड़ता है. अरे अभी जो आप बचे हुए हो वो आपका पावर नहीं है, वो आप भक्तों का पावर है. आपके ऊपर किसी की छत्र छाया है बोल के आप बचे हुए हो. बट जिस दिन वो छत्र छाया हट गई, आपको स्वयं से ठाक ली जाएगी. पता भी नहीं चलेगा कि अरे क्या कहाँ था मैं, क्या कर रहा हूं मैं अभी. बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको. मैं बता रहा हूं ऐसा हुआ है लोगों के साथ. इसलिए प्रभु, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट all our युवा devotees, you are very young and you are not free from lust, anger, greed, pride, envy, especially lust. हम में से कोई फ्री नहीं है. इतना आसान नहीं है इसको पार करना. ये याद रखिए, भगवान का चेतावनी है कि दिस इज वैरी नाम, नित्य वैरी नाम. हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ये लस्ट. तो किसी भी विधि में ऐसा अपना रंग दिखाएगा कि आप वो काम कर जाओगे जो आपने कभी सपने में सोचा नहीं था. जैसे जैमिनी का वो व्यासदेव का एग्जाम्पल है ना. तो जैमिनी जब ये श्लोक आता है, ये श्लोक गीता में आता है, तो देन व्यासदेव is telling that oh this lust is very powerful. Then Jaimini tells that oh Vyasdev, oh Guru, no I think we can conquer it. It's not so strong as you are telling, so strong. So then Vyasdev smiles. He tells Jaimini, okay, we'll see, time will show. Then so there's one stormy night and this Jaimini was alone there. So then Vyasdev, I think he comes as a woman. Yes, 16-year-old woman comes and she knocks the door. Jaimini का knock करती है डोर को. तो Jaimini अंदर से बोलता है कौन है. तो then she tells that oh I am a
16-year-old, और शायद मछली बेचने वाले कुछ थी, तो समथिंग वाज लाइक दैट। तो प्लीज मुझे आप एक रात के लिए शेल्टर दे दीजिए घर में। तो जेमिनी टेल्स दैट नो नो नो, आई कांट, आई एम अलोन पर्सन हियर, मेल हियर, हाउ कैन आई गिव शेल्टर टू यू? So then she tells, okay, just let me sleep outside the gate, outside, because it's too much stormy night and rainy. How will I, where will I go? So then he tells, okay, okay, bahar so jao. Now she sleeps outside and Gemini sleeps inside. Whole night he could not sleep. He's thinking of her, कि क्या होगा, बाहर कैसा ये होगा। तो फिर आधी रात को जाके गेट खोलता है और बोलता है कि यू कैन कम इनसाइड। गेट खोलता है, उसको अंदर लेता है, and then he proposes to her that then this lady tells that no, I will fulfill your desire, but only thing you have to make yourself, आप एक घोड़ा बनो, मैं आपको बैठ करके वहां जाऊंगी, और कुछ सामान उसका रखा रहता है कुछ, तो वहां मुझे लेके चलो, पहले मुझे वहां लेके चलो, और मैं चल नहीं सकती हूँ, मेरा पाँव बहुत है, आप घोड़ा बनो, मैं आपको बैठ के चलूंगी। तो फिर वो पूरा घोड़ा बनता है और वो पूरा स्टॉर्मी नाइट में घोड़ा के चलता है, और उसके ऊपर वो लेडी बैठती है, और बीच रास्ते में जो है एक ऐसा थंडरबोल्ट आता है, ऐसा लाइटनिंग होती है, और फिर वो व्यास अपने असली रूप में आते हैं, और जेमिनी को बोलते हैं, क्यों जेमिनी जी, व्हाट वर यू टेलिंग टुडे इन द क्लास? गुरुदेव यू, आप हो, तो कितना शर्म आया होगा उसको, अरे गुरुदेव यू आर, आप हो, बाप रे बाप, उसका पूरा इतना बेइज्जती होता है। Then Vyasa tells, I told you ना, don't take it lightly। सोचो जब वो जेमिनी जैसे लोग, क्या हम तो क्या है उनके सामने, इट इज लाइक दिस। और आप सोच रहे हो आप अकेले घर में रह करके, आप बिना भक्तों के एसोसिएशन के आप बड़े महान योगी निकले हो, जो माया से बच जाओगे। अरे तो माया अपना पत्ता फेंकी नहीं है, जिस दिन फेंकेगी ऐसा लपेटे में आओगे कि कोई बचा नहीं पाएगा। तो ऑफकोर्स ये हम ग्राफिकली से बताते हैं कि बी अवेयर, डोंट थिंक कि वी हैव बिकम नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ इन आवर साधना। नो, एनी सिंगल डे एक बार आपका अटैचमेंट पड़ा किसी वुमेन के प्रति, गए आप काम से, बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। ओनली बिकॉज हमारे प्रभुपा जी गुरु महाराज का आशीर्वाद है बोल के हम बच रहे कैसे भी करके, अदरवाइज टू डिफिकल्ट, कोई भी इस वेग को रोक नहीं पाया है। तो इसीलिए क्या है कि बेटर बी कॉशियस, सो देन बिकम कैजुअलिटी, डोंट बी कैजुअल अदरवाइज विल बिकम कैजुअलिटी। तो इसलिए क्या है कि ऐसा आई एम वार्निंग स्पेशली यूथ डिवोटीज, क्योंकि क्या यूथ लोग जो है उनका क्या अभी यंग माइंड है और सेंसेस भी बहुत पावरफुल है, एक्टिव है, और आप मेटल से डील कर रहे हो, डोंट स्पॉइल योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, डोंट ruin योर स्पिरिचुअल लाइफ। आप somehow अगर आपको मिल गया है बहुत सुनहरा चीजें, नो डाउट देयर इज तपस्या, देयर इज सम ग्रेट रिस्ट्रेंट वी हैव टू फॉलो, बट द एंड रिजल्ट इज नेक्टेरियन। तो वो रिजल्ट आने से पहले ही लुप्त मत हो जाइए, गायब मत हो जाइए। एंड इसलिए इफ यू डोंट कम ऑन संडेज, यू डोंट कम ऑन 1 week in a program, you don't hear regular lectures, or you are inviting great trouble, you are inviting trouble for you. So that's my humble request. Today I wanted to discuss something else on this, but some other Paramatma, by seeing this depth here, I got instigated to speak. Anyhow, we have some time, 15 minutes. I quickly wanted to take some review on Janmashtami. So what do I do? So maybe we can go 15 minutes. Yeah. So I succeeded time, 8:30 I stopped. Okay. Anyhow, anybody is having any questions or any comment, or you want to share anything regarding this topic, whatever I spoke, you are welcome. Everybody is spellbound, thinking. Hare Krishna. Yes, Boli Baban.
हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज का लेक्चर जो था वो बहुत रिलेटेबल था। मतलब मैं पिछले एक वीक, मतलब पिछले कुछ दिनों से इसी टॉपिक के आजू बाजू में घूम रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं खुद को जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, लुक विद इन, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जब मैं प्रीवियसली भक्ति कर रहा था तो उसके पीछे जस्ट मेरा, जैसे आपने बताया था कि जो है, मैं जस्ट डेज को काउंट कर रहा था, पास कर रहा था। बट जैसे जैसे मैं भक्ति में, मतलब नाम जप को जैसे जैसे मैं सीरियसली लेने लगा, वैसे वैसे जो है मुझे अपने आप में बहुत सारे चेंजेस दिखने लगे। मेरा डेडिकेशन और टुवर्ड्स भगवान के प्रति जो प्रेम भाव है, या फिर गुरु प्रति जो डेडिकेशन है, वो और बढ़ने लगा। तो ये सब कुछ जो है तब होने लगा जब मैंने मेरी जो मेडिटेशन है, मेरी जो जपा है, उसको सीरियसली लेने लगा। तो हम्म, इट इज, जो भी आपने बोला, एक एक शब्द जो है वो मैंने खुद से पूरा रिलेट कर पा रहा हूँ कि जो मैं पहले था और जो मैं अब हूँ, तो इसमें बहुत बड़ा, मतलब 1 to 100 इतना बीच में डिफरेंस है। जब मैंने इनिशियली इस्कॉन ज्वाइन किया था और जो मैं अब हूँ, तो ये जस्ट बिकॉज मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपका और हृदय माधव प्रभु जी का, कि आप दोनों के गाइडेंस की वजह से, मतलब जो भी आज फील कर पा रहा हूँ या जो भी मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, तो ये सब कुछ आपके गाइडेंस की वजह से है प्रभु जी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। even we can also हरे see that in your life. हम भी आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव देख पा रहे हैं, एंड दैट्स करेक्ट। आप जब गंभीरता से चैंटिंग को लेते हो तो आपका इंटरनल मंथन होता है और फिर आपके अंदर से ज्वेल निकल के आता है। अदरवाइज जो लोग बाकी लोग प्रैक्टिस करते हैं वो बाहरी बारी, जैसे बच्चा को कहते हैं ना कि लीकिंग द बॉटल फ्रॉम आउटसाइड, अंदर हनी रखा हुआ है बट बाहर से चाट रहे हो ग्लास को लेकर, तो एक्चुअल हनी नहीं आता है। एक्चुअल हनी तब आएगा जब ढक्कन खोलोगे और हनी को चाटोगे। तो इसलिए जब कोई सिंसियरली बैठ के जप करता है एक जगह पर 10 माला, 12 माला, 16 माला, और रियली 4 नियम पालन करता है, प्रॉपर जी किताब को एकदम से पढ़ता है, तब उसमें से नेक्टर निकल के आएगा, तब असली हनी चाटते हो आप लोग। तब तक तो क्या है, खाली हम लोग वही बाहर आ गए, प्रसाद मिल गया, वाह मजा आ गया, मजा आ गया, चलो थोड़ा कीर्तन कर लिए, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बज गए, थोड़ा कोई वाह वाह कर दिया। ये सब एक स्टेपिंग स्टोन्स है, बट ये गोल नहीं है। ये गोल नहीं है। गोल है रियली हार्ट को चर्न करके चेतो दर्पण मार्जनम, दिखना सामने कि ये मैं हूं, होना चाहिए। तो कुछ हमारा एलिवेशन होना चाहिए, हमारा आध्यात्मिक चेतना ऊपर बढ़ना चाहिए, होना चाहिए। अदरवाइज आई सी मैनी पीपल दे आर टेकिंग देयर लाइफ सो चीपली। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा मॉर्निंग पूरा मिस हो जा रहा है, मेरा अभी लाइफ मैं बता रहा हूँ, मेरा भी 3-4 दिन हो गया, बिकॉज आई एम टू हैवीली, मेरा बॉडी पूरा वो हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। इसलिए मेरे को इतना गिल्ट आता है सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं 9 घंटे मिस हो गया। बहुत गिल्ट आता है मेरे को, ये मेरा, अरे मेरा ये, इसलिए आई रोट अ लेट मैसेज आल्सो इन आश्रम दैट मुझे बहुत गिल्ट आ रहा था कि व्हाई आई डिडंट वेंट फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम लाइक दिस। बट क्या करें, बॉडी सब अभी सपोर्ट नहीं करा। तो लास्ट एक वीक बहुत ही टॉर्निंग गया पूरा एकदम, एवरीडे प्रोग्राम 12-12 बजे तक करते करते। तो इसलिए इस वीक को थोड़ा सा हम चलो रेस्ट ले रहे हैं, फिर अगले वीक फिर चालू हो जाएगा, फिर जबलपुर जाना है, बहुत सारी चीजें हैं, फिर ये हो जाएगी। तो बट बहुत गिल्ट आ रहा था ये अंदर से, तो इसलिए मैं सोचा कि बट आई सी सम पीपल, उनको कुछ गिल्ट नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं नहीं आया मॉर्निंग प्रोग्राम, कोई बात नहीं, क्या आ गया, मेरा जपा नहीं हुआ है, उनको पूछो माला नहीं अभी बाकी है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट shows that you are so indifferent to your sadhana, you are so indifferent to your spiritual life, it doesn't affect you। आपको हृदय में चुभता नहीं वो चीजें, अरे मैं आज उठ नहीं पाया सुबह, नो, और मेरा माला नहीं हुआ अभी तक, या मेरा बहुत घटिया माला हुआ आज। that shows that you are least bothered about your spiritual advancement। तो अगर आपके अंदर वो नहीं है, वो आपके अंदर फायर नहीं है, नो बडी कैन मेक यू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। हम ईयर में बढ़ जाएंगे आगे, हम लोग 5 साल 10 साल 20 साल पुराने भक्त बन जाएंगे, बट हमारे चेतना में हम वही एकदम निम्न कोटि के भक्त रहेंगे। तो खाली ईयर बढ़ने से क्या होता है, फिर एक अलग जन्म लेना पड़ेगा। तो ये एक चीज आना चाहिए, स्पेशली मतलब मैं तो अब इसको बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ कि नहीं नहीं, सम एडवांसमेंट हैज टू बी सीन।
हैज टू बी सीन। कुछ अनर्था जाना चाहिए मेरा, अगर मेरे अंदर लस्ट है तो कुछ तो कम होना चाहिए भाई, मेरे को हर साल कुछ तो दिखना चाहिए कि नहीं नहीं कुछ हुआ है, कुछ तो भाई इफेक्ट आना चाहिए। अदरवाइज सेम ही चल रहा है, मतलब क्या है, व्हाट आई डिड, एक साल में मैं क्या किया, मैंने टाइम पास किया खाली। तो इसलिए थोड़ा सा सेल्फ ऑब्जर्व बनना बहुत जरूरी है, सबको बनना बहुत जरूरी है। तो ये अच्छा, थैंक यू बाबा टू फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर पर्सनल लाइफ। थैंक यू। थैंक यू एनीबडी? सर जी। ओके, एनीबडी एल्स want to share this? Today class become self-reflective class. Okay, nobody else. Fine. So I wanted to discuss about how Janmashtami went. So I wanted to share some of my experiences. Maybe then one or two of you may can share experience. From Jabalpur devotees, I have already done this. So they all shared their experiences. But here I had not done. So I thought that today I will do, but then let us see. So this Janmashtami uh, is a great festival, and because now Radhashtami is coming, so Radhashtami is one more chance for us to self introspect and pray to Radharani that day. That's why I want to do it today. So for me personally, I almost celebrated 5 Janmashtami festivals, starting from Raurkela on 10th of August, and on the all 5 occasions I got chance to speak Krishna Katha, and I want to give the summary of whatever I spoke and what was this just 5-10 minutes more. So the first Raurkela program was they just gave us chance to speak of 15 minutes on Govardhan Leela, and then we did Kirtan, and there were about 1,500 students were there. It was a grand program, the annual program. So Master Mahadev we went and came, but unfortunately, when I came back because of weather change, I got cold just after coming here. But on tablet, some other I passed the whole Janmashtami, and I think 15th August we celebrate Janmashtami in Ambegaon. There also I spoke on 2 hours, and this specific lecture was pointed to one particular devotee, and I could hit my target. so, so that devotee was thoroughly impressed, and he understood what I wanted to speak. Of course, that not our devotee, not our ये, but वो व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजर थे उनके लिए मैंने बोला था, और 2 बार मुझे कॉल करके बोले प्रभु जी मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ये चीज को, ये कथा को जो मैंने पूरा उसको फ्रेम किया था उसको ऐसे ही, ताकि उनको मेरा हार्ट उनको चेंज करना था उनका। Some other, ये अच्छा गया। Then on 16th we celebrated Janmashtami here in temple. So we had 2 stand seva, and our congressional devotees and even our youth devotees, they did fabulous well. मैं तो बहुत बीमार ही था, but then I spoke on Venu Geet, I spoke on हमने 3 घंटा का था वो भी बहुत अच्छा हुआ, वो मुझे बहुत रिलेशमेंट लगा उसको बोल करके, although I was exhausted. Then 17th हमने प्रभात व्यास पूजा मनाया, और फिर 19th गुरु मार्च का व्यास पूजा मनाया, और फिर एक कथा मैंने दिया 22 तारीख को, हाँ 22 को उल्लासनगर में, वहां मैंने कहा सुदामा जी का कथा अगेन। तो बहुत रिलेशन था वो भी मेरे लिए, बहुत अच्छा था। ऑल्सो हेल्थ बेकार था लेकिन बहुत आनंद आया, लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, और रात को कथा भी अच्छा हुआ। और फिर 23 को हमारा पनवेल का प्रोग्राम हुआ, देयर आई स्पोक ऑन कृष्ण अर्जुन कथा, तो very well attended. In fact, I got a feedback that some of the ladies they told that कि goosebumps आ गए थे उनको कथा सुन करके, they were, I got a very good feedback, not my glory but some of the Krishna inspired, तो कथा बहुत अच्छा गया। बट मैं ऑल थ्रू आउट देखा कि कृष्ण कथा ही हमारा जान है। मैं एक्चुअली मेरे लिए तो, बिकॉज मैं ये देखा कि ऑल्दो हेल्थ बैड है, बट व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट कृष्णा समहाउ अदर I just transcend, I can transcend these healthy things and all. I could feel that, but I'm not transcendental right now. But when I speak about Krishna, I felt that मैं एक अलग लेवल पे चल जाता हूँ, मतलब मेरा वो हो जाता है। तो somehow ये मेरे लिए अच्छा एक संकेत है। तो उस दिन मेरे को फील हुआ पनवेल में कि this should be my goal, कि मुझे और इसमें मेहनत करना चाहिए, and I should just keep speaking कृष्ण कथा, keep speaking। तो मुझे मेरा एक नेक मिल गया, मेरे को मेरा एक जन्माष्टमी मेरे को एक रियलाइजेशन आया
जस्ट कीप स्पीकिंग कृष्ण कथा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि और उसको कैसे बेहतर बनाऊं और कैसे कथा को रिलेशेबल बनाऊं और एकदम डीप जा करके भगवान की कथा बोलते जाऊं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रिवलेशन था, भगवान की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिला, ये ऐसे मुझे लगा। तो एंड बाय द वे प्रोग्राम वाज वेरी गुड, ऑल्दो आफ्टरवर्ड्स पूरा बॉडी कोलैप्स कर गया फिर 3-4 दिन में, बट रिकवर हो जाएगा। बट ओवरऑल इट वाज गुड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कृष्णा कि सारे फास्टिंग डेज मैं ठीक से कर पाया, कोई भी एक दिन मुझे फास्ट नहीं छोड़ना पड़ा, जो भी सब थे, और सारे प्रोग्राम अटेंड कर पाया, सब कुछ कर पाया। ऑल्दो बॉडी वाज नॉट सपोर्टिव एट दैट टाइम, बट हो पाया बिकॉज ऑफ कृष्णा's mercy. So, and I'm very grateful and thankful to all the devotees, to the mother, to another devotees also, who helped me in all the programs. हर जगह में उन लोगों ने बहुत मदद किया, ताकि सब लोग की मदद से ही सारा कार्यक्रम अच्छे से बीत गया। So that was the thing from my side. Anybody else want to say? Maybe we can hear from Hridaya Madhapu also something about his festival and all celebration, and then one or two more we may take from other devotees. Yes. Yes, Hridaya Madhapu. I'm very thankful to Prabhuji and ISKCON Cabinet and all the devotees. Because of them, I also could able to serve a bit. लेकिन जितना सेवा होता है इस जन्माष्टमी से, मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा और भगवान के करीब जा पाया, और ISKCON को जो एक भक्त को जो एक फैमिली का पार्ट समझ पाया। फिर जितना सेवा होता है उतना फिर रेसिप्रोकेशन होता है, भगवान उतना फिर अपने लगने लगे। तो धीरे धीरे मतलब मैं जब पहले था तो उतना फील नहीं होता था, बट जितना सेवा करने का मौका मिलता है उतना फिर भगवान के भक्तों के करीब हो पा रहे हैं। और प्रोविजन जैसा होता है कि कृष्ण का पद है वो जहाँ जहाँ प्रभु जी है तो वहाँ मुझे भी जाने का मौका मिलता है। तो कृष्ण कथा जो है वो सुनने के बाद ही जो है लगता है कि फेस्टिवल मना रहा है। तो एक फेस्टिवल मतलब जन्माष्टमी पहले वाला एक फेस्टिवल था, तो उसमें बलराम जयंती, तो उसमें मैं फील नहीं कर पाया उतना जितना मैं बाकी फेस्टिवल में फील करता, बिकॉज उतना मैं पर्सनली हियरिंग नहीं कर पाया। थोड़ा थोड़ा बाद में फिर कुछ लेक्चर सुना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो यस, अगर श्रवणम हो रहा है और उसके आधार पे अगर कीर्तन हो रहा है तो स्मरणम होगा, और स्मरणम होगा तो एक फुलफिलमेंट होगा कि नहीं, वी हैव डन समथिंग। तो थैंक यू। और अमन प्रभु जो है काफी इस जन्माष्टमी में, क्योंकि वो सारा युवा डिवोटीज को हैंडल कर रहे थे, तभी जाके टेम्पल में मुझे सेवा दिया साउंड सिस्टम का और कीर्तन का, वो सेवा में कर पाए। तो थैंक्स टू अमन प्रभु एंड बाबू माने प्रभु। हम देगा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा इस बार, और जो पनवेल का प्रोग्राम है इस बार भी काफी पीसफुल रहा, क्योंकि सारे भक्तों ने ऑलरेडी इतना बढ़िया सेवा ले लिया, इतना ग्रो कर लिया। बस मुकेश का हेल्थ ठीक नहीं था, तो जो उस पे भी जा करके वो लगा के आए। हाँ, ये बड़ी बात है। मुकेश वो सलाइन पे थे, लेकिन वो सलाइन उतार करके जाके लगा के आए। थैंकफुल थे वो सेवा वही कर सकते थे। तो हर एक भक्तों का एक अपना रोल है, एक भी बात कम हो गया तो सिस्टम मिल जाता है। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। Anybody else want to speak anything? Their reaction जन्माष्टमी कोई स्पेसिफिक रिएक्शन अगर आपको आया, एक फील हुआ कोई पॉइंट पे कि वो दिस इज जस्ट यूरेका एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ आपके मन में आया है तो बताइए। 5 मिनट्स मोर, 10 मिनट्स मोर। हरे कृष्णा। यस, बोलिए बाबू। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ कि आपने मुझे जो है अम्बेगांव का जो है मतलब मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है अम्बेगांव का प्रीचिंग एंड ऑल थिंग, क्योंकि मैंने कभी प्रीचिंग तो किया नहीं था, बट आपके गाइडेंस में समहाउ चल रहा है। तो जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ था वो मेरे लिए मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। सो मुझे कुछ आइडिया नहीं था और सब कुछ एकदम सडन मूवमेंट पे मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई और सारी चीजें जो है एकदम सडनली हो रही थी, बिकॉज मैंने सोचा था एक दिन पहले जाके जो है सारी चीजें सेट करके रखूंगा,
बट जैसे हम सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि थोड़ा मैन पावर का बहुत इश्यू है वहाँ पे, बट जैसे आपकी कृपा रहेगी और भगवान की कृपा रहेगी तो धीरे धीरे मैन पावर आएगी। बट उस पूरे फेस्टिवल में अम्बेगांव का मैंने एक चीज पूरी लाइफ टाइम के लिए सीख ली कि जब भी किसी भक्त का लेक्चर चालू होगा तो उस समय पे जो है एक एक जगह पे बैठ के जो है सिर्फ श्रवण करना है। तो उस चीज को मैंने जो है गार्ड बांध के रख दी है कि इसलिए मैं आज से मतलब आपने भी ऑब्जर्व किया रहेगा, जब भी आपका लेक्चर होगा मैं फ्रंट सीट पे आके जो है सिर्फ बैठूंगा, बाकी कुछ सेवा रहेगा वो बाजू में छोड़ के सिर्फ सेवा करूंगा। यस, और ये मैं नेक्स्ट आप सबके लिए एक खुला वार्निंग दे रहा हूँ कि whenever I स्पीकिंग, मैं जब कथा दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग सब चुपचाप बैठ जाइए, या तो मेरे आंखों सामने मत आइए, पीछे जो करना है कीजिए, नहीं तो मैं आपको पब्लिकली माइक पे डांटूंगा। तो ये समादर मिले आपको, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अभी जब मैं क्लास दे रहा था पनवेल में, तो वहां पर कोई कॉर्पोरेटर या कोई एमएलए कुछ आए थे, और वो लोग बात कर रहे थे, मैं उनको भी डांटने वाला था, लेकिन मैं समादर अपने आप को रोक लिया। मैं बोला अरे बाबा ये लोग हमारे गेस्ट है और वो हो जाएंगे, बिकॉज when Krishna Katha is going on, this is the where Krishna is present there. And if you are making noises or you are doing here, there, you are disturbing the class, you are doing great disservice to Krishna at that time. And this is intolerable. At least I cannot tolerate. इसलिए प्लीज मैं आप सबको बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा हो तो आप एकदम पीछे जो कीजिए, मेरे नजर के दूर से बाहर में कीजिए, सामने डिस्टर्बेंस मत कीजिए। तो ये मैं बाबू मैंने अच्छे समझा दिया हूँ। और स्पेशली ऑर्गेनाइजर, अगर आप ऑर्गेनाइज करो, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू सिट इन द क्लास। ये हमको सिखाया गया है। बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजर बैठेगा तो बाकी पब्लिक बैठेगी, अरे हाँ देखो ये इतना भागादौड़ी करा था, अभी जब कथा हुई ये बैठा है, सब छोड़ दीजिए उस समय, खाली बैठ जाओ। जिसको सेवा करना है वो आओ मत क्लास में, बात आप उधर पीछे करते रहो जो भी है। एंड ऑल्सो थैंक यू टू बाबू माने प्रभु। I really appreciate his really this Janmashtami we got one good leader manager who managed the whole program very nicely। वो अभिषेक मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जो मैंने पर्सनली हमने अम्बेगांव में किया राधा कृष्ण विग्रह को। बहुत मेरा दिल संतुष्ट हो गया पूरा वो अभिषेक करके भगवान का, एकदम रगड़ रगड़ के उनको नहलाए हम लोग। और ये पहली बार मैंने डीटी का ऐसा अभिषेक किया होगा तो मैंने अपने हाथों से। तो थैंक यू टू बाबू माने प्रभु, ही मैनेज इट वेरी वेल। याद रखिए जब भी हम कोई सेवा लेते हैं, भले दुनिया आए जाने जाने, हम हमारा उद्धार तो होता ही होता है, हम तो कम से कम कुछ सीखते हैं। तो ही डिड इट वेरी वेल। I want every youth devotee should become leader like this. Take leadership, grow in your bhakti, take some challenges for Prabhupada, do something great for Prabhupada. Don't just always depend, हाँ प्रभु जी बताएंगे, प्रभु जी करेंगे। प्रभु जी तो करेंगे, आप नहीं करोगे तो भी प्रभु जी करेंगे, और आप क्या कर रहे हो वो जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्लीज टेक इंस्पिरेशन नाउ। Some of our devotees have grown very nicely, so we have made 4 mentors also: Baba Mane Prabhu, Aman Prabhu, Deep Rajgut Prabhu, and our Karan Prabhu. So now every devotee, your devotee will be under one mentor. They will be connected to mentor, so they will be equals and all. Mentor means monitor. So then they will be through whatever now our activities will go through mentors only, and eventually more mentors will become. Mentors should become very strong, stable devotee. They should be leaders doing pakka in their sadhana and their reporting and their seva. So this system we are now going to implement, because when things grow up, we need people, we need more leaders to come up. Okay, fine. Sorry Babu, anything else? यस प्रभु जी, और एक चीज मैं सीखा, जैसे कि आपने मुझे लेके गए थे पनवेल प्रोग्राम के लिए, तो सब लोग जो है पहले बैठ के जो है पूरी सेवा जो है मैनेज कर रहे थे, कौन क्या करेगा क्या करेगा। तो ये चीजें जो है मैंने आपका ऑब्जर्व किया कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई फेस्टिवल बनाऊंगा तो सभी लोगों को पहले बिठा के सबको हाँ पहले सेवा देना बहुत जरूरी है। बिकॉज फिर ऑन स्पॉट बिल्कुल, जो भी सेवा आती है तो फिर वो बहुत मिसमैच हो जाता है। हाँ तो वो सारी चीजें मैंने सीखी। और एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मतलब ये पूरा हफ्ता जो है, मतलब 15 तारीख से आज तक पूरा इतना सबका भागदौड़ हुआ, मेरा भी स्पेशली बहुत मतलब हुआ, मेरा भी तबीयत खराब हुआ। लेकिन इतनी तबीयत खराब होते हुए भी जब भी कीर्तन हो रहा था या फिर सेवा हो रहा था तो मेरी एनर्जी हाई लेवल पे थी। मैं ही सोच नहीं पा रहा हूँ
कि अभी मैं जो हूँ इतना थका हुआ था, पैर दुख रहा है, बॉडी पूरी स्टिफ हो गई है, एकदम रिजिड हो गई है, फिर भी डांस कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, कहाँ से एनर्जी आ रही है पता नहीं, सेवा कर रहा हूँ। और लिटरली मैं कुछ प्रिपेयर किया नहीं था प्रभु जी, 8वें अध्याय का। मैंने जस्ट रविवार का जो था पनवेल का प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद रात को 1 बजे पहुंचा और मॉर्निंग अम्बेगांव चला गया। तो मैं रास्ते में भी आपका लेक्चर सुनते सुनते आधे लेक्चर सो गया था। फिर भी अम्बेगांव में जो है मैंने 1.5 घंटे का क्लास कैसे दिया मुझे भी पता नहीं, और अंदर से वो सारी चीजें आ रही थी जो आपने एक एक लेक्चर दिया था, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो है मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं बोल रहा हूँ, ऐसी चीजें मैंने बोल दी। और नितिन प्रभु और सब लोग बोल रहे थे कि आपने तो कुछ प्रिपेयर किया नहीं था, फिर भी इतना अच्छा लेक्चर। और उस दिन कीर्तन भी इतना नाइस हुआ, बाप रे, फुल मेडिटेटिव कीर्तन हो गया मेरे से। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है पता नहीं, बट बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें। अच्छा श्रवणम करोगे तो कीर्तनम अच्छा होगा। तो जो लोग अच्छे सुनेंगे क्लासेस, वो लोग ही ठीक से बोल पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे। जो सुनेंगे नहीं तो क्या प्रचार करेंगे हम लोग। इसलिए क्या है, जब भी कोई लेक्चर होता है तो आप लोग को बहुत ध्यान से सुनिए उसको, फिर ऑटोमेटिक आपके मन में वो चिंतन होगा और वो कहीं ना कहीं निकलेगा वो बाहर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू अच्छा सो है। मच प्रभु। हरे कृष्ण। अच्छा है, मैनेजमेंट स्किल सीखना चाहिए लोगों को, आप सबको सीखना चाहिए। हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू डेलीगेट देम, हाउ टू इंस्पायर देम, and you know how to make proper group formation. That's why this Panvel program was very, everybody was appreciating this because we did proper management. हम पहले ही 1 हफ्ते से हम पहले मैंने सारे लीडर्स को यहाँ टेम्पल में बुलाया, सबको रोल दिया। फिर हम 1 दिन पहले ऑन स्पॉट जाके मीटिंग की हमने वहां पर कि तुम ये करोगे, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करोगे। तो सबके लीडर सेट थे, उनको असिस्टेंट दे दिए गए थे। लिटरली मैं प्रोग्राम वाले दिन 5 बजे पहुंचा हूँ, 5:30 प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, मैं 5 बजे पहुंचा हूँ। But everything was on place. Everybody did their own job nicely. थोड़ा 19-20 तो होता ही होता है, वो है, but it went very smoothly. टाइम पे शुरू हुआ, टाइम पे खत्म हुआ, everything was perfect. In fact, some devotees from Chapati has also come. समय और लोग तो इतना मैंने they were like too appreciative। प्रभु जी क्या ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम। इवन हमारे टेम्पल से भी जो लोग गए थे, रम्या सुदापुर लोग गए, बोले माय गॉड मान गए ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइजेशन, मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ आज ये बात। श्रील प्रभुपाद जी एक बार गिरिराज महाराज को पूछे थे कि आफ्टर आई एम गॉन हाउ विल इस्कॉन रन। तो महाराज गिरिराज महाराज ने कहा था कि वी विल चैंट नाइसली, विल फॉलो स्ट्रिक्टली योर प्रिंसिपल्स, योर टीचिंग ऑन। प्रभुपाद टोल्ड दैट इज ओके, बट प्रभुपाद टोल्ड organization with intelligence will run this ISKCON forward. Organize properly and put your brain intelligence, then you will move things forward. तो इसीलिए क्या है कि our personal purity has to be there, but how do you organize the program, how do you, ये सब स्किल सीखिए आप, ये आपको ग्रो करेगा भक्ति में, है ना। नाइस। एनीबडी एल्स वांट टू स्पीक एनीथिंग? 3 minutes more, 9:12 हो चुका है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जी प्रभु जी, जन्माष्टमी के बाद में जो श्रील प्रभुपाद जी का जो मतलब वो दिन था ना प्रभु जी, संडे वाला, उस दिन शाम को आपका कीर्तन चालू था। उसके पहले 2 माता जी जो थे कीर्तन कर रहे थे ऑलरेडी, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट किया था टेम्पल हॉल में। पर उनका जो कीर्तन था वो मुझे उतना ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा था। मतलब उनका सुर अलग था, ताल अलग था, करताल एक बज रहा था, मतलब उतना मतलब अच्छा से वो कीर्तन नहीं कर पा रहे थे। बस कुछ 10-12 लोग ही जो थे कीर्तन में पार्टिसिपेट किए थे। पर प्रभु जब आपने हाथ में करताल लेके जब आपने कीर्तन शुरू किया प्रभु, इतना मस्त लगा, पूरा टेम्पल हॉल भर गया। तो सब लोग जो है टेम्पल हॉल भर के सब नाचने लगे, झूमने लगे, माता जी, प्रभु जी, यंग लोग, ओल्ड लोग। इतना मस्त प्रभु जी आपने कीर्तन कहा। बहुत ये जन्माष्टमी के दिन भगवान की कृपा से हम लोग कर पाए। जी प्रभु। और मैं ये आपसे शेयर करना चाहता था, पर कर नहीं पाया सेवा की वजह से, ऐसा वैसा करके भूल गया। पर आज फिर से याद दिला दिया आपने, तो मैं पर्सनली बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छा माय क्या बोलते लाइफ एक्सपीरियंस आपने करवा दिया प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा है, कीर्तन में भाग लीजिए और हृदय से गाइए भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो अपने आप वो फिर माहौल जम जाता है। मन में इच्छा है, तीव्र इच्छा भगवान को खुश करना है, तो वो हो जाएगा। हमें कोई नेम फेम ग्लोरी वहां नहीं चाहिए,
हमें केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना है। कोई भी एंडेवर कीजिए, एकदम ठाकुर जी को खुश करने के लिए जी जान लगा दीजिए, अपना भरपूर प्रयास लगा दीजिए, फिर भगवान उसमें निखार ला देंगे। दैट इज द होल प्रिंसिपल। भले हमें स्किल्स हो ना हो, डजंट मैटर, बट वी वांट टू प्लीज कृष्णा विद आवर फुल एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। कृष्णा विल प्लीज। ओके, सो स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूं और भक्तों को शेयर करना होगा, मे बी नेक्स्ट टाइम विल डू दैट। और अभी गणपति फेस्टिवल आ रहा है, कईयों के घरों में प्रोग्राम होगा, तो आप लोग सब जाइए वहां, कीर्तन कीजिए जैसे, और अच्छे से माहौल जमाइए, बढ़िया। एंड राधाष्टमी इज कमिंग 31st, तो संडे को, तो सारे यूथ डिवोटीज आ जाइए। राधाष्टमी के दिन बढ़िया है, अगर जन्माष्टमी में कुछ रह गया तो राधा रानी पूरा कर देगी, है ना। तो उस दिन है, फास्टिंग की लून है, बढ़िया कीर्तन में भाग लीजिए और राधा में गुणगान होगा। मे बी आई सी आई कैन आल्सो टेक सम क्लास ऑन राधा रानी, आई सी। एंड देन राधाष्टमी दिन हम वो गाएंगे, राधा कृपा कटाक्ष गाएंगे हम लोग, लास्ट ईयर हमने किया था, बढ़िया वो करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय। जय हरे